Hello students, in previous video we have discussed about the human male reproductive system. Now today we will learn about the female reproductive system. Students, in this picture it is clear that how many ovaries you have seen in this picture. There are two ovaries. In the same way, like this, in previous video, what you have learned, there are two testes. And what is the main function of testes? They produce sperms. In the same way, in female reproductive systems, there are two ovary. Each ovary has a number of ovules, or you can say a number of ova. है ना? And during the birth, before the birth, as I told you in previous video, कि before the birth, or you can say in embryonic condition, when the girl child is in its mother womb, तभी से यहाँ पर जो है egg का production start हो जाता है. But these eggs are in immature condition, isn't it बच्चों? And when they will mature at the time of puberty. So I hope I am making you clear कि there are two ovaries in a female reproductive system. And in the same way, the second important structure, students, these things. What are these? Are oviduct, or you can say these are fallopian tubes. Each fallopian tubes are connected with each ovary. और ये जो फैलोपियन ट्यूब्स ही होती है, ये आगे कंटिन्यू करती है and it forms a special structure and this structure is known as uterus. तो what you can conclude it? जो egg होगा students, from where it will go? It will go from the fallopian tube से कहाँ जाएगा? uterus में जाएगा. And in which conditions it will go? As you know, after the fertilization, जैसे ही fertilization होता है तो it will implemented in the ovary. And where is the fertilization take place? So it is very important thing, the fertilization take place in fallopian tube. Maybe such type of questions may comes in your exam कि as you know, in human beings internal fertilization take place, but in which organs it take place? तो it take place in fallopian tube. यहाँ पर जो है फैलोपियन ट्यूब्स में ही, ये देखो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि फैलोपियन ट्यूब्स में ही क्या है, ओवरी अटैच है और यहीं से जो एग जो है यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म विल कम और ये स्पर्म्स जो है फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज होगा और इफ फ्यूजन टेक प्लेस it form zygote and zygote where it will come? Zygote it comes in the uterus. I hope I am making you clear student. तो ये जो है जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो फर्स्ट is ovary, second is fallopian tube, third one is uterus. Ovary, fallopian tubes and uterus. These things are very important organs of female reproductive system. Okay, बाकी सारे organs आपको मालूम ही है कि these are also associate organs, isn't it? Next, अब थोड़ा सा हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, as I told you, which produce the female reproductive cells, and what we call it, these cells are known as ova or egg cells. Okay, along with this, it produces the hormones, that is estrogen. In previous class, mainly in class 8, you have learned testes produce testosterone
and ova produce estrogen. And these both hormones are responsible for the secondary sexual characters, or you can say these are responsible for the puberty. The two oviduct unite into a bag-like structure, and this bag is known as what we call it, uterus. अब देखिए आप इस पिक्चर में इस चीज को क्लियर देख सकते हैं। ये देखिए, ये ओविडक्ट जो है ये यहाँ से आपस में ज्वाइंट हो रही है, और ये जो पोर्शन होता है स्टूडेंट, इट्स नोन एज यूट्रस। तो ओविडक्ट ही क्या बनाता है, यूट्रस बनाता है। और जो मेन इसका जो चाइल्ड बर्थ कैनाल होती है, इट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, एंड दिस कैनाल इज नोन एज चाइल्ड बर्थ कैनाल आल्सो। तो ये आपसे कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू क्लियर। मेनली ऑर्गन्स जो हैं थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं उनके बारे में। अ पेयर ऑफ ओवरीज, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस। आप देख रहे हैं यूट्रस के दोनों साइड पर एक एक ओवरी लोकेटेड है। इट प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स दैट इज कॉल्ड ओवा, एंड इट सिक्रेट estrogen and progesterone. Progesterone is very important hormones, and if this hormones is used if the female has conceived a baby embryo, तो how can we come to know कि it conceive? ये जो पैथोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट होती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दिस हार्मोन्स विल स्टार्टेड टू सीक्रेट। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी से ये हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होने लगता है। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो वो इस हार्मोन्स की प्रेजेंस से ही होता है स्टूडेंट्स। तो दिस इज फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ व्हाट यू मीन बाय फैलोपियन ट्यूब्स? एज आई टोल्ड यू, fallopian tubes is very important. It play very important role for the fertilization, है ना, and it receive ovum from the ovary. Now uterus, it is a baby carry bag, you can say. Cervix, narrow lower part of the uterus, and vagina, tube-like structure, and it acts as a birth canal. Sperm discharge occurs here. Means you can say the passage of the sperms from it cover the journey from male organ to female organ. Through this passage it can go towards the fallopian tubes where fusion take place. I hope I am making you clear, students. Now, how the female sex is produced? It is produced by epithelium in ovary, and release of ovum from ovary is known as ovulation. Students, it's a very important things. What is the time period of ovulation? So as I told you, eggs are mature inside the ovary, and after the maturation in each month one egg from each side, कभी लेफ्ट ओवरी से कभी राइट ओवरी से, one egg will release from the each ovary to the fallopian tubes. कहाँ जाता है? ओवरी से रिलीज होता है और जाके ये fallopian tube में जर्नी कवर करता है. And in this tube if fertilization takes place, अगर fertilization होता है तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? It will shift to the ovary. It will shift to the, where it will shift? It is implemented to the uterus. But if fertilization does not take place, so what will happen? It will comes out from the body as the form of bleeding. Okay, so this process is known as ovulation. Now, what happened when fertilization takes place? During the mating or sexual intercourse, the sperm from the male enters into the vagina of the female. The sperm reaches the oviduct. The sperm fuses with an egg and form a zygote. The zygote then gets implemented in the uterus.
Okay, and the zygote then starts dividing from the embryo. In the same way, as I told you, जो embryo form होता है, it is a single cell. मतलब we all are made from a single cell, है ना. हम लोग सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आफ्टर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन और यू कैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एम्ब्रियो बनता है इट्स अ सिंगल फॉर्म, है ना. और इसी सिंगल सेल मल्टीपल डिवीजन के बाद पूरी कंप्लीट बॉडी बन जाती है. द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स, अब ये दिस इज जो ये 9 मंथ्स का पीरियड होता है, इट्स नोन एज गैस्ट्रेशन पीरियड. तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज पीरियड्स आर नोन एज गैस्ट्रेशन पीरियड. तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू क्लियर. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. एज आई टोल्ड यू कि मेल बॉडी में 1200 बिलियंस sperm cells are formed, but during the mating time only 200 billion will carry the cover the journey from male organ to female organ, and one lucky sperm will reaches to the ovum and it will fertilization. So this is the process of fertilization. Now what happened if the egg is not fertilized? It's a very important thing, and it is very important terms also कि what happened, and this is the cause menstruation. And as the female reaches to the puberty, so what is the menstruation, students? Female body is now ready for the reproduction, isn't it? And an egg is released from either of the ovary every 28 days. और जब ये फैलोपियन ट्यूब्स में एग रहता है, तो ये जो इसका टाइम पीरियड है, ये जो इसकी लाइफ स्पॉन है, एग का लाइफ स्पॉन होता है ओनली 24 आवर्स. अगर इस 24 आवर्स में ये फर्टिलाइज हो गया तो इट विल फॉर्म अ जाइगोट, और यदि नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल व्हाट विल हैपन विद द एग, इट विल डिस्ट्रॉय. अब आपको मालूम है कि हाउ इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स, है ना. तो अब एज यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ यूट्रस. यूट्रस जो होता है वो क्या करता है, बेबी को, अब जैसे आपके घर में कभी कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट के लिए आप रूम रेडी करते हो, उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हो, इजंट इट. तो इन द सेम वे द वॉल ऑफ यूट्रस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द नर्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो. जो फर्टिलाइज जाइगोट होता है आफ्टर डिवीजन इट इज़ नोन एज एम्ब्रियो. तो उस एम्ब्रियो की नर्चरिंग के लिए, केयरिंग के लिए जो वॉल ऑफ द यूट्रस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना. तो जो वॉल ऑफ द यूट्रस है ये काफ़ी लेयर्स फॉर्म कर देती हैं ताकि उसको काफ़ी स्पंजी माहौल मिले. आप इसको इस तरीके से, तो दीज वॉल आर नोन एज एंडोमेट्रियम. सो एंडोमेट्रियम जो है वो काफ़ी थिक हो जाती हैं. अब वो किससे बनी होंगी स्टूडेंट्स, बॉडी के अंदर है, मेनली उनका मेन कंटेंट क्या होगा, सेल्स होंगी, और मेनली ब्लड सेल्स. ब्लड क्यों ज़्यादा होगा यूट्रस में, बिकॉज आपको मालूम है कि जो एम्ब्रियो होगा, हाउ इट विल नर्चर, कैसे होगा, इसके पास तो कोई सिस्टम है नहीं कि आप के द्वारा दिया हुआ या मदर के द्वारा लिया हुआ फूड इनटेक करें, है ना. तो ये क्या करेगा, डिजॉल्व ग्लूकोज लेगा. ग्लूकोज कहाँ से जाएगी, उसके पास ब्लड के थ्रू जाएगी. तो आप ये समझ लीजिए जो यूट्रस होता है वो फुली जो किससे फिलअप हो जाता है, ब्लड से, क्योंकि उसको ब्लड में ही सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि उसको ग्रो भी करना है. तो जो यूट्रस की वॉल होती है वो इस तरीके की प्रिपरेशन करती है. And if fertilization does not take place, तो what will happen, no zygote is formed, and endometrium जो होती है, वॉल जो होती है यूट्रस की, it will started to break, वो ब्रेक हो जाती है. अब आपको पता है कहीं कोई ब्रेकिंग आएगी तो what will happen, ब्लड विल फ्लो. तो इस तरीके से वो जो है, वो जो ब्लड होता है, वो जो ब्रेक्स हुई वॉल वो बिल्कुल यूजलेस होती हैं, और वो सारी वॉल्स जो है वो बाहर बॉडी से आउट हो जाती हैं. और वो किस फॉर्म में है, चूँकि वो ब्लड से बनी है तो ब्लड के फॉर्म में वो आउट हो जाती है. तो आई होप स्टूडेंट्स आई एम मेकिंग यू क्लियर. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज menstruations, menstrual cycles, or you can say it's a sexual cycles. तो इसमें जो क्वेश्चन आता है कि
what is the period of menstruation cycle or sexual cycle? So it is a 28 days. वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है. Now a very important topic is reproductive health. The next very important topic which is in your course, that is reproductive health. अब as I told you कि what is the age of puberty? 13 to 18 है ना. तो after this the age is ready for the reproduction. But student, it is not clear in this time यहाँ से जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, वो प्रिपेयर हो गए फॉर द रिप्रोडक्शन. what is the motive of this topic? This topic is motive of how we increase the population, how the living organism increase their population, है ना. तो अब ये जो बॉडी है, बॉडी इज मैच्योर, जो ऑर्गन्स आर मैच्योर, sexes are mature, but mentally the female body is ready for the baby. It depends on its condition. तो during the teenage organs are started to develop, लेकिन वो fully developed नहीं होते. तो what do you mean by reproductive health? This state, the state where the complete physical, mental, social well-being in all aspect of reproduction. मतलब जो फीमेल बॉडी है वो फिजिकली रेडी हो बेबी कैरी के लिए, मेंटली रेडी हो, फिनेंशियली रेडी हो, है ना. क्योंकि आपको पता है कि इफ बेबी विल कम इट टेक्स लॉट्स ऑफ रिलायबिलिटी ना, मतलब फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मतलब जो फीमेल है वो बेबी कैरी के लिए फुली मेंटली रेडी होनी चाहिए. उसके साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में व्हाट विल कम? नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑर्गन्स. इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड पार्ट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने सराउंडिंग्स में देखते होंगे, आपके यहाँ अगर इफ़ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो आपने देखा होगा आपके यहाँ चाची या मामी, इनके जब ये बेबी कैरी करते तो आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी केयर में कितना टाइम लगता है, कितनी ज़रूरतें होती है. उसकी केयर के साथ साथ मदर केयरिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? द चाइल्ड विल सफ़र फ्रॉम सो मेनी डिसीजेस आर यू कैन से माल न्यूट्रिशन, है ना. अगर मदर का प्रॉपर फूड नहीं हुआ और मदर को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो बेबी को भी प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा एंड द बेबी विल सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. The next is family planning. If you are completely mentally, socially, financially ready, and after that family planning होती है. आपने देखा होगा कि आपके घर में जो elders होंगे, if they complete their graduation, if they get their job, and now after that they will marry and they will plan for the baby. तो वो family planning is very important for the reproductive health. And it's a very important thing is STD, knowledge on sexual transmitted disease. क्योंकि ये जो टीन एज से ही हमें क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को काफ़ी हेल्दी रखना है, हाइजीन से रिलेटेड चीज़ों को जानना है. अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ STDs. तो वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट दीज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. अब इसमें जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है व्हाट यू मीन बाय मेनोपॉज. तो एज आई टोल्ड यू कि जो फीमेल की बॉडी है इट इज़ रेडी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बट इट इज़ दिस प्रोसेस इज़ नॉट हेल्ड इन लॉन्ग लाइफ या टिल डेथ. एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि नाउ जो एग प्रोडक्शन इन ओवरी विल स्टॉप. तो व्हाट इज़ द एज व्हेन द एग प्रोडक्शन इन द ओवरी विल स्टार्ट? दैट इज़ द दिस एज और दिस टाइम पीरियड इज़ नोन एज मेनोपॉज. ओके, क्योंकि इन दिस एज नो एवुलेशन, नो मेंसेस, so at this time the production will stop. And what is this age? This age will vary to individuals, है ना. कुछ फीमेल में ये 45 में बंद होगा, कुछ फीमेल्स में, मतलब ये जो टाइम पीरियड है आफ्टर 55 द
egg production will totally stop. तो what is the meaning of menopause? I hope you will learn. और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं. Now care of mother and child. You all are familiar about this. कि आप लोग टीवी में आए दिन ऐड भी देखते होंगे कि how we carry the baby carry female or the female who conceived. तो उनको हम कैसे केयर करते हैं. और इवन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मतलब जो बेबी को फीड कराते हैं, उनके भी डाइट का हमें बहुत स्पेशल ध्यान देना. प्रॉपर एज डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड, क्योंकि अगर दो बच्चों के बीच में डिफरेंस नहीं करे हो पाएगा तो हाउ द मदर विल केयर बोथ द चाइल्ड्स. प्लानिंग अ बेबी एट द राइट एज ऑफ द मदर. अब आपने देख लिया कि प्यूबर्टी एज जो होती है वो 13 से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 14-15 की एज में कोई भी फीमेल बेबी कैरी के लिए तैयार हो सकती है या उसकी बॉडी फिजिकली मेंटली उसको इस चीज़ के लिए परमिट करती है. नो. उस समय जो होगा, अगर उस एज में बिफोर 16 या बिफोर 17 यदि फीमेल बेबी कैरी करती है तो वो फीमेल और वो बेबी दोनों ही बहुत ही वीक होते हैं और वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है फीमेल की डेथ का. तो जो करेक्ट अप्रोप्रिएट एज इज़ बिटवीन 20 to 35 ईयर्स. तो ये सारी चीज़ें यू शुड नो अबाउट इट. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट, what do you mean by STDs? So these are the transmitted diseases during sexual intercourse. तो ये आप लोगों ने एड्स के बारे में तो पढ़ा ही था कि एड्स सबसे इम्पोर्टेंट है, यू शुड नो अबाउट इट. और आपको बहुत चीज़ें पता ही हैं, तो आई विल नॉट टेल यू इन डिटेल. एंड द नेक्स्ट डिसीज यू हैव टू नो द नेम ऑफ दिस डिसीज आर गोनोरिया एंड सिफिलिस. तो ये आप लोग ध्यान रखना. फिर इसके बाद अगर जो हम पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए ही सदा सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस वैरी करती हैं ना. तो हाउ कैन यू प्रिवेंट, हाउ कैन द फीमेल प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, कैसे कर सकते हैं? तो देयर आर वेरियस मेथड्स, और ये गवर्नमेंट ने भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करने के लिए बनाए हैं. तो दीज बैरियर्स आर दीज मेथड्स आर नोन एज बैरियर मेथड्स, और इसमें केमिकल मेथड्स और सर्जिकल मेथड्स. तो ये बैरियर मेथड्स में जो है वो मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं. केमिकल मेथड्स भी इसी तरीके की हैं, पिल्स हैं. एंड सर्जिकल मेथड्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वैसोक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. तो दीज आर द सर्जिकल मेथड्स. और वैसोक्टोमी किस में होती है ये पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो व्हाट यू मीन बाय वैसोक्टोमी? वैसोक्टोमी मीन्स द मेल बॉडी में जो बैरियर सर्जिकल मेथड्स के द्वारा ये जो बैरियर्स लगाए जाते हैं. एंड द ट्यूबेक्टोमी इट्स अकर्स, ये जो सर्जिकल मेथड्स है इट इज़ अप्लाइड इन फीमेल बॉडी. तो आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर कि व्हाट आर दीज मीन्स एंड हाउ you can learn about the female and male reproductive system. I hope students now I am making you clear and learn, and if you have any doubt you can ask. Okay, thank you बच्चों.